Okay. Good morning, Saundarya ji. Am I audible? Yes, you are. Namaste, Bhamini ji. Okay. Namaste, namaste. How are you? Yeah, I am not really good. So, I have joined this alley after like 2 years of Okay. yoga practice. So in between, I had 2 years of gap. So it's just been like 2 to 3 classes. Initially, I had muscle cramps. Like here, I was not able to lift my hand, something like this. But after 1 or 2 days, now it is fine. But yesterday, I we had asanas of lower back mainly. After that, what is happening is I don't know. I had a severe pain like in my back, and I'm not able to bend forward, and Okay. yeah, I'm not able to sit with cross-legged, and it is paining. In some angles, it is paining terribly. Like now, I'm in doubt whether it is only a muscle cramp or do I need to consult a doctor. Like if something got uh, you know disturbed back then. And Hmm. it has happened yesterday only, right? Yesterday only, correct. Okay. Okay. So not consulting a doctor for now. We will wait for 2 more days. We'll see. But for 2 days, please relax. Don't do any yoga practice for 2 days. At least you have to completely relax your muscles for now, because maybe spasm, maybe muscle cramp, maybe we are expecting that it should be a muscle cramp or spasm only. But if this is not a muscle cramp and spasm, we will see after 2 days. If the pain aggravates, if the pain gets more worse, then we have to consult a doctor. But I don't think that consulting a doctor would be required, because it Just a would be cramp just a only. muscle cramp only. Yeah, see, Yes, yes. sometimes, yeah. Are you able to bend backward? While sleeping and all, it is fine. Okay. But while sitting and in some angles, see, suppose like this, if I'm doing that Setu Bandhasan pose will be there, no? Like where we will do Yes, yes. the back Lifting up. the hips up. I try to do that. That is where the ache is. Like that is where the pain is more. Like in Got the it, lower. got it. In your Yeah, sacrum region. yeah, Yes, yes, got it. yeah. Okay, so what you have to do to release that pain, it will, Viparita Naukasana, how it is done. When we do that Naukasana in a prone position, our hands are in front and then we lift the body. We Uh, lift the legs up and upper body up. If you are upper not body. having any, yes, yes, if you're not having any pain while doing that pose, you will do it once. You will see, because that asana is the best asana to cure this back problem. Okay, so you have to do that Viparit Naukasana, and you have to hold it for 10 seconds, 10 breaths, and then slowly come back. Second, you have to do Bhujangasana, only half. But in that Bhujangasana, what you will do, you will tuck in your elbows, hands by the side of your chest, elbows should not be out. Tuck in nicely, chest out, and then you will only lift till your navel region. The navel region will remain on ground only, it will not lift up. The pelvic region should not be lifted up. Okay, just make sure the navel region is on ground, only this much region is up. And the shoulders are nicely tucked in, and then neck at the back. So it will release all the tension in your lumbar and sacrum region. Okay, and you have to maintain that pose for at least 10 breaths. Even if it is hurting you, but 10 breaths, definitely when you will come back, you will see the pain has gone. But do it every day, morning, evening, 10 breaths, only these two asanas. And third thing, you have to do the leg stretching. I don't know your trainer teaches you that. Belt, you need a belt, okay? I'm telling you all these asanas to release this your lumbar region as soon as possible so that it becomes comfortable. Okay. Okay, what you have to do, you will take a belt, you will lie down in a straight line position. Then we will lift the right leg up and fix the belt in your right foot. Hold the leg, make sure the knee remains straight. Hold the leg for again 5 breaths, and then hold the belt with your right hand and let the leg go to the right side only. Right side only. Okay, make sure the belt is nicely pulled towards ourselves. The leg will go right side. 5 breaths. Again, we will bring it to the center. Then hold the belt with the left leg, and then we do the twisting
let the leg go to the left side. So whatever stretch has happened here, or whatever muscle cramp has muscle cramp has happened, it will get released with this leg stretching. Same with the other leg. We will lift the leg, fix the belt, 5 breaths. Then we will let the leg go to the left side, 5 breaths, center, and then leg to the right side, 5 breaths. But at the same time, when we are twisting, our face will be opposite side. This hand will be nicely stretched. Okay, shall I show you? These things do I have to do after 2 days, or can I start doing You it can do like? it immediately. You can do it immediately because this is the therapy. See, basically, I am a Iyengar yoga therapist. So I Okay. am not an instructor, I'm a therapist only. So I deal with all these things very often. So when you are Oh, having this problem, this leg stretching, Bhujangasana and Vipreet Naukasana, you have to start doing it immediately. Okay? yeah, I have a yoga Make strap sure, as well. yes, make sure no forward bending asanas, not at all. Okay, no extreme back bending, no upward dog, no complete Bhujangasana pose. You can do twisting. Definitely in a lying down position, do twisting. It will release all the stress in your lumbar and sacrum region. Okay. Uh, no standing asanas for now, because when we are doing Tadasana, when we are doing Vrikshasana, what happens? We again contract the lumbar. We again create a lot of stress in the lumbar and sacrum region, because to maintain that pose, our lumbar is the main thing which takes all the stress. Okay, so no standing poses for now, only sitting poses. Side stretch you can do. Okay, then the lying down stretching, Bhujangasana and Vipreet Naukasana. That's it. Oh, And in 2 days, within 2 days, you will feel that your pain has gone. And let the team know that these asanas have affected you in a positive way, so that they can convey me again. Okay. okay, okay. All right. I'll do. Thank you. Okay, any other query? Uh, that's it for now. Okay, okay, Thank. Saundarya. And don't worry, just relax, and Yeah, it will cure. Okay, don't worry. I can do my regular activities, right? Like walking and all, I can do it, right? Going. Yes, yes, Yeah. yes. Don't stand for too long. Okay. Again, it will create a pressure in your lumbar region. Make sure you are sitting again and again after. Matlab, don't stand for more than 15 minutes, 20 minutes, half an hour. Just relax in between the intervals. Okay. Okay. Thank Okay, you. Saundarya. Okay. Okay. Any more queries? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Sunita ji. How मैम are मेरे you? पैरों के दर्द में कुछ नहीं कम फायदा हो रहा है मैम। आप वो कर रहे हैं जो स्ट्रेचिंग मैंने बताया था, लेग्स अप द वॉल, विपरीत करनी कभी कर रहे हैं? कभी कभी कर रहे हैं, आजकल तो बहुत दिन से मिस हो गया है। ऐसे थोड़ी होता है, फिर आप ऐसे शिकायत नहीं कर सकते, आपको रोज करना है। मैंने बोला है ना, पैरों का दर्द थोड़ा इंस्टेंट बाहर बाहर चले जाएगा। गए थे तो 8-10 दिन से रह गया, आउटिंग पे चले गए थोड़ा बाहर पे, तो फिर से दर्द वैसी हो गया है, चलने मुझे उलने में एक बहुत बात पेन हो। बताइए, बाहर बाहर जाते हैं हम तो खाना खाना भूलते हैं, तो ये क्यों भूल जाते? इसको हमें प्रायोरिटी देना है। जब तक हम प्रायोरिटी अपने बॉडी को नहीं देंगे, बॉडी हमें प्रायोरिटी नहीं देगी। इस बात को समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाना खाना नहीं भूलते, हम घूमना नहीं भूलते, हम तैयार होना नहीं भूलते, तो हमें योगा करना और जो चीज हमारे लिए मैंडेटरी है वो करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, जैसे एक हार्ट पेशेंट अपने हार्ट को ठीक रखने के लिए दवाई खाता है ना, तो वैसे सिचुएशन ना आए, इसलिए ये योगा पोजेस हमने करने हैं, ताकि हमारे लेग्स एकदम ठीक रहे, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। विपरीत करनी रोज करना ही है आपको, चाहे आप बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, कुछ भी है। 5 मिनट आपको खाली अपने लिए निकाल के, बिल्कुल क्या करना है उसमें, खाली लेटना है, लेग्स को ऊपर करना है, लेग्स को अपनी तरफ खींच कर रखना है और रिलैक्स करना है बस। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत एफर्ट्स डालने हैं, है ना। मैं डेली वाला मिस नहीं करती मैम, अगर मेरा सेशन अगर छूट जाता है तो दूसरा ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन मैं ये जैसे 1 घंटे का फिर किसी के साथ बहुत लोग होते हैं तो फिर उसमें अपना ज्यादा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, वो तो तो आपको अलग से करना है, वैसे भी वो तो आपको अपनी रेगुलर योगा क्लास में वैसे भी नहीं करना है। उसके लिए तो आपको अलग से ही टाइम निकाल के 5 मिनट अलग से ही करना है उसे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए उसको रेगुलर करने की, आपके पैर का दर्द डेफिनेटली चला जाएगा। बट रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, योगा में अगर रेगुलरिटी नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ओके।
टैबलेट भी ले सकती है? क्या कह रहे हैं आप? कैल्शियम की टैबलेट भी ले सकते हैं मैम क्या? हाँ, टैबलेट लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कैल्शियम की कमी है शरीर में, तो डॉक्टर रेकमेंडेड टैबलेट ही लीजिएगा। ऐसे ही हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेंगे। डॉक्टर्स अच्छी कैल्शियम की और विटामिन डी की टैबलेट्स लिखते हैं, तो वो लेंगे तो आपका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन अपने आप होने लगेगा। सनलाइट लीजिए। अच्छी सनलाइट लेते हैं आप या नहीं लेते? माइक ऑफ है आपका। जी वो तो हो जाता है मैम, क्योंकि मेरा छत मतलब बहुत खुली हुई, तो मैं सुबह जाकर 5 मिनट वहां पे टहल लेती हूँ। जी। परफेक्ट, फिर ठीक है। जी। ठीक है, तो कुछ नहीं, वो हो जाएगा ठीक। थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग रखिए, पैरों की स्ट्रेचिंग अच्छे से कीजिए। जो विपरीत करनी मैंने बोला है, कुशन लगाकर हिप्स के नीचे, वो विपरीत करनी कीजिए और बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ओके सुनीता जी। यस, एनी मोर क्वेरीज? शैलजा जी, मनस्विनी जी, सागिर जी, चंचला जी, गुड मॉर्निंग। कोई क्वेश्चंस हैं आपके? नहीं? गुड मॉर्निंग So, मैम। गुड गुड मॉर्निंग शैलजा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सागिर जी, you were telling something? हाँ वही मैम, गुड मॉर्निंग। वही मेरा भी पैर का दर्द है। अच्छा, आपका भी पैर का दर्द रहता है। पैर का मेरे दर्द पैर का सूज भी प्रीवियस जाते हैं हिस्ट्री? मैम, सूज भी जाते हैं मेरे पैर। हम्म। कहाँ पे स्वेलिंग रहता है मोस्टली? आपके नीचे एंकल से नीचे वाले पार्ट पे हाँ या हाँ, एंकल के एंकल पास। से ऊपर वाले पार्ट? एंकल के पास मैम। एंकल के पास में स्वेलिंग रहता है, ठीक है। तो उसको रिलीज करने के लिए एक तो हमारे एंकल्स की स्ट्रेचिंग अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। मेक श्योर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए हमारे ओवरऑल लेग्स में। तो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए सुबह उठते ही थोड़ा सा पैरों का मसाज करना है अच्छे से। उठने से सीधा उठते ही हमने जमीन पे पैर नहीं रखने हैं। थोड़ा सा अच्छे से ये जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, इनको इतनी हाँ देर हाँ तक हाँ। दबाना है कि पूरे पैर लाल हो जाने चाहिए। थोड़ा सा रबिंग करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से मसाज देंगे। पैर जब तक अच्छा। हमें लाल नहीं दिखने लग जाते तब तक हम जमीन पे पैरों को हम्म, नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ओके। फिंगर्स को अच्छे से वो बजाने नहीं है, सिर्फ इनको भी अच्छे से हम्म, पुश प्रेशर डाल के अच्छे से मसाज करनी है, ठीक है। हमें ओवरऑल ये एड़ियों की अच्छे से मसाज करनी है। जी जी। उसके बाद इनको अच्छे से घुमाना है, दोनों तरफ अच्छे से घुमाना है। 15 से 20 बार एक तरफ, 15 से 20 बार दूसरी तरफ। तो जो ये हम्म, एंकल्स की स्वेलिंग है ना, ये चली जाएगी धीरे धीरे। सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचेगा तो सब ठीक हो जाएगा, और कुछ भी ओके। नहीं है। एंड फिर वो विपरीत करना है मैम। हाँ, विपरीत करनी आपने भी करना है। अगर लेग्स में स्वेलिंग रहता है तो ओके। विपरीत करनी करने से आपका जो पेल्विक फ्लोर साइड है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आपके जो लेग्स का ये जो स्वेलिंग है या कहीं कहीं पार्ट्स पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं जा रहा है, वो अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके। ओके सागिर जी। हाँ जी शैलजा जी, गुड मॉर्निंग। आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, अब वेरिकोज बोलिए। वेन्स, वेरिकोज वेन्स के लिए। वेरिकोज वेन्स के लिए कब से है वेरिकोज वेन्स का इश्यू आपको? एक्चुअल में है तो पहले बहुत थोड़ा सा था इतने से पोर्शन में, लेकिन अब हम रेगुलर योगा भी चल रहा है, क्लासेस भी चल रही, तो भी थोड़ा पैर में बढ़ता जा रहा है। और पैरों में ही ना पेन भी, ऐसा लग रहा है कोई मसल्स खींच रहा है, मतलब उनमें स्ट्रेंथ नहीं लगती है। ओके, ठीक है। वेरिकोज वेन्स के लिए जो हम नॉर्मल योगा आसनास करते हैं वो एक हद तक इफेक्टिव रहते हैं, बट वेरिकोज वेन्स के लिए हमें अलग से भी थेरेपी करना पड़ता है। अलग से देयर आर आसनास, देयर आर लेग स्ट्रेचिंग, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हम वेरिकोज वेन्स पे काम करते हैं। तो आपके वेरिकोज वेन्स के लिए भी लेग स्ट्रेचिंग जो मैंने अभी सत्य सौंदर्य जी को बताई थी, आप शायद आपने ज्वाइन नहीं किया था। लेग स्ट्रेचिंग, एक बेल्ट रखना है हमें, रेजिस्टेंस बेल्ट या नॉर्मल बेल्ट, ठीक है। आप मेक श्योर करेंगे आप सीधे लेटे हैं मैट पर। उसके बाद आपने राइट फुट में अपने बेल्ट को फंसाना है और लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ठीक है। बेल्ट फंसा हुआ रहेगा, बेल्ट हमने पकड़ रखा है। उसके बाद घुटना एकदम सीधा है, यहाँ होल्ड करेंगे 5 to 6 ब्रेथ्स।
उसके बाद बेल्ट को राइट हाथ से पकड़ेंगे और पैर को राइट साइड ही जाने देंगे, राइट साइड जाने देंगे। वहां पे होल्ड करेंगे 5 से 6 ब्रेथ्स। फिर से उसको सेंटर में लेके आएंगे, बेल्ट को पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ से, पैर को जाने देंगे लेफ्ट साइड और चेहरा हमारा राइट साइड। वहां पे 5 से 6 ब्रेथ्स। सेम करना है दूसरे लेग के साथ। लेग्स की स्ट्रेचिंग जितनी अच्छी रहेगी, जितना लेग्स को स्ट्रेच, क्योंकि बेल्ट हम यूज करें तो बेल्ट को अपनी तरफ खींच के रखना है। जब बेल्ट खींचेंगे तो पंजा खींचेगा, पंजा खींचेगा तो पूरे लेग के मसल्स अच्छे से खींचेंगे, घुटना सीधा रहेगा, काफ मसल्स खिंचाएंगे, पूरे लेग्स खिंचाएंगे। तो जो वेरिकोज वेन्स जो इतना स्ट्रेसफुल क्रिएट कर देती है ना हमारे पूरे लेग्स में, तो वो एकदम रिलैक्स होंगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा लेग स्ट्रेचिंग से, क्योंकि वो पेल्विक रीजन, हमारा लंबर, हमारी थाइज, पूरे में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आपका जो वेरिकोज वेन्स का इश्यू है वो ठीक हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपने भी विपरीत करना है। कुशन लगाना है बटक के नीचे, ठीक है। 2 कुशंस लगाइए, या बोल्स्टर होता है ना जो मुड्डा आता है बड़ा मोटा सा, उस मुड्डे को हमें हिप के नीचे लगाना है और दोनों पैर को दीवार पे सीधा करना है। और मेक श्योर कि हमारा जो ऐसे दूर नहीं रहना है, बिल्कुल पास में सटे हुए हैं दीवार के। उसके बाद पंजे बिल्कुल अपनी तरफ खींचे हुए, पंजों को अपनी तरफ अच्छे से खींच कर रखना है, दोनों हाथों को ऐसे फैला देना है, हिप्स हमारे उस कुशन पे रहेंगे और उसके बाद वैसे लेटे रहना है 5 से 6 मिनट। ओके मैम। ठीक है, आप करके देखिए एक बार। हम करेंगे 1 महीना और उसके बाद देखेंगे क्या इफेक्ट। मैम ये से ना लेग्स में एकदम हैवीनेस सा ऐसा लगता है, एक बिकॉसोल मल्टीविटामिन लो, एक कैल्शियम लो, तब थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगती है, अदरवाइज ऐसा। जबकि वेरिकोज वेन्स ओनली ऑन लेफ्ट लेग, राइट में तो है ही नहीं है। और ठीक है, तो भी ना मसल्स नीज के नीचे जैसे ना काफ्स मसल्स के काफ जैसे मसल। खिंचाव, बहुत ज्यादा खिंचाव लगता है वहां की। हाँ, बिकॉज ऑफ वो वेरिकोज वेन्स का स्टार्टिंग है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ लेफ्ट में ही है, तो वो वेरिकोज वेन्स ने अभी जड़ें जमाना शुरू की हैं, तो उनको अभी हमें वही स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो फैलता जाएगा, दर्द और ज्यादा। और वेरिकोज वेन्स सबसे ज्यादा क्यों, हमारे काफ मसल, क्योंकि काफ को माना जाता है सेकंड हार्ट, हमारा दूसरा हृदय मानते हैं काफ को, कि काफ मसल में अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हुआ तो वो उतना ही डेंजरस है जितना हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं हो तो होता है। ठीक है, सेकंड हार्ट है ये। सारा कुछ ब्लड सर्कुलेशन का पंपिंग वगैरह ऊपर नीचे सब हमारे काफ मसल से जुड़ा होता है। तो काफ मसल्स का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे इतना ज्यादा खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे, उतना अच्छा है। तो क्या करना है, अच्छा जॉगिंग पे जाइए। जॉगिंग पे जाते हैं अच्छे से? नहीं, वॉकिंग तो करते हैं, जॉगिंग नहीं, वॉक करते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वॉक पे जाइए। कोशिश कीजिए 1000 स्टेप्स हम कवर कर रहे हैं, 1000 स्टेप्स हमने कवर करने हैं अच्छे से। और उसके बाद ये जो लेग स्ट्रेचिंग मैंने बताई है, सुबह शाम दोनों टाइम कीजिए, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ओके, जितना मॉर्निंग लेग्स का स्ट्रेचिंग रहेगा। मॉर्निंग में तो इतनी वॉक नहीं हो पाती, इवनिंग में तो हाफ एन आवर की रहती है। कोई कोई बात नहीं, आप वॉक कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है मॉर्निंग इवनिंग। क्लास भी होती है, फिर घर का भी अपना देखना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह बिल्कुल दो बिल्कुल इतना। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वॉक कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, चाहे आप मॉर्निंग में कीजिए चाहे इवनिंग में कीजिए। इवनिंग में कर रहे हैं, गुड इनफ। आप मेक श्योर कीजिए आप 500 से 1000 स्टेप्स कर रहे हैं, चाहे इवनिंग में चाहे मॉर्निंग। ठीक है, ज्यादा ही हो जाता है, हाफ एन आवर रहता है तो ऐसे। ज्यादा ही। हाँ, मैम और ये लेकिन है जो ना, काफ मसल। हम्म, हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए प्लीज, गो अहेड। एक्चुअली क्या है, वॉकिंग इसलिए ज्यादा नहीं होती, नीज में पेन बढ़ जाता है जब हम वॉकिंग ज्यादा करते हैं। जी देखिए, एक तो हमारा एज फैक्टर भी है, हम उसको नकार नहीं सकते। ठीक है, एज फैक्टर हमारा, उसको तो हमें मानना ही है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक एज के बाद शरीर में सारे इश्यूज होने लगते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हम लेडीज, हमारे ये सारी जो इश्यू अभी हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यंग एज में हमने अपने आप पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ऑल वर ऑफ माई एज, आई डोंट नो वेदर यू यूज टू डू योगा और नॉट, और आप कितना हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। शादी के बाद ऑटोमेटिकली आई कैन अंडरस्टैंड कि शादी के बाद हम लेडीज पे इतना बर्डन आ जाता है फैमिलीज को लेके, चीजों को लेके, कि हम अपने हेल्थ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, एंड वी डेडिकेट आवरसेल्व्स कंप्लीटली टू द फैमिली एंड टू आवर हस्बैंड्स एंड बेबीज। तो उस दौरान में हम ये जो चीजें अभी सफर कर रहे हैं, ये वहां पर ध्यान नहीं देने के नतीजे हैं कि अब हम सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं। योगा कैन ओनली मैनेज।
ठीक है, हम इस चीज को समझेंगे, योगा किसी चीज का क्योर नहीं है। अभी कैंसर हो गया किसी को फॉर एग्जाम्पल, तो वो कैंसर को क्योर नहीं करेगा योगा, सिर्फ मैनेज कर सकता है, थोड़ा और अवधि को बढ़ा सकता है, चीजों को ठीक रख सकता है थोड़े टाइम के लिए। हाँ, सर्वाइकल है, अगर एक बार किसी को सर्वाइकल हो गया, वो क्योर नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर के लिए मैनेज हो सकता है कि हाँ, इतना ज्यादा पेन ना बढ़ जाए कि इंसान दर्द के मारे पागल हो रहा है। तो वो योगा ऐसी चीज है जो हर चीज को मैनेज करेगी। डायबिटीज हो गई, डायबिटीज को जिंदगी भर मैनेज करके रखेगी। क्योर तब होगा जब हम अपना 10,000% दे रहे हैं, सुबह शाम प्राणायाम आसन सब कुछ चीजें साइड में छोड़ के सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे हैं, तो फिर वो क्योर प्रोसेस में भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट इट टेक्स टाइम, more than 6 months, 8 months, years of practice. Okay? ओके मैम, थैंक यू मैम। बाकी लेग स्ट्रेचिंग करते रहिए, इट विल बी बेटर। काफ मसल्स में जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा उतना ही ठीक है। ठीक है, और लेफ्ट लेग की स्ट्रेचिंग ज्यादा अच्छी रखिए अगर लेफ्ट लेग में वेरिकोज वेन ज्यादा है। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके चल दी, टेक केयर। एनी मोर क्वेश्चंस? यस चंचला जी, गो अहेड। मैम ये बेली फैट को कैसे कम करें? इसके बेली लिए कुछ फैट को कम करने के लिए कोर की वर्कआउट करनी है बहुत अच्छे से। देखिए, पहला तो चक्की संचालन जो हम करते हैं हमारी क्लास में, हम मुश्किल से 20 बार करते हैं या 14 बार करते हैं, क्योंकि क्लास में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। आपको उसके रेपिटेशंस को बढ़ा देना है। चक्की संचालन को 3 बार करना है, हर सेट में कम से कम 30 बार क्लॉकवाइज, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज, इसको करना है 3 बार। सेकेंड चीज, नौकासन। जो नौकासन करते हैं हम, होल्ड करते हैं 45 डिग्रीज पर, उस नौकासन को कोशिश कीजिए 10 सेकंड होल्ड किया, फिर घड़ी को देखते हुए 10 सेकंड से 20 सेकंड बढ़ाया, फिर 20 से 30 सेकंड बढ़ाया। जब तक नौकासन 30-30 सेकंड तक, 40-40 सेकंड तक होल्ड नहीं करेंगे, तब तक वो बेली पर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। तुरंत गए तुरंत आ गए, कुछ असर नहीं पड़ेगा बेली पे। होल्ड करना है आसन को। ठीक है, उसके बाद तीसरा, ये जो करते हैं हम लेग्स को स्ट्रेच करके पादप्रसार पश्चिमोत्तानासन, दोनों तरफ जाते हैं ना इस तरह से नीचे, उसको करना है 25 से 30 बार। 25 बार 30 बार दोनों तरफ जा रहे हैं स्पीड के साथ। ओके। फोर्थ चीज, कोर की जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोर की जैसे मैं मेरी क्लास में बहुत करवाती हूँ कोर का वर्कआउट। तो कोर का जो वर्कआउट होता है, जिसपे हम सिर्फ यहाँ पर फोकस करते हुए होल्ड कर रहे हैं, नौकासन में होल्ड किया, फिर वापस ऊपर उठे, फिर वापस नीचे गए, ये कम से कम 10 से 12 बार रिपीट किया। उसके बाद ट्विस्टिंग्स करी, एक्टिव ट्विस्टिंग्स करने से हमारा जो वेस्ट लाइन है वो टोन अप होता है, हमारा कोर मैनेज होता है। प्लैंक किया, प्लैंक पोजिशंस करते हैं ना हम, उस प्लैंक में भी होल्ड करने की कोशिश करनी है। 10 सेकंड से स्टार्ट करेंगे। प्लैंक प्लैंक करते हैं ना, प्लैंक पोजिशन, एल्बोज पर रह के। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, तो उसको होल्ड करने की कोशिश करनी है हमने। 10 सेकंड से शुरू करेंगे, 10 सेकंड, उसके बाद 15 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड। तो हमेशा हमें उस 10 सेकंड पे नहीं अटके रहना है, हमें कोशिश करते रहना है कि उस प्लैंक पोजीशन में कैसे ज्यादा से ज्यादा देर और बने रहे। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। जब तक 30 सेकंड पे नहीं आए तब तक हमें गिव अप नहीं करना है, उस 30 सेकंड की तरफ बढ़ते रहना है। तो जैसे जैसे हर आसन में होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये बेली फैट कम होता जाएगा। बहुत सिंपल है। मेरी मेरी बच्ची जब से हुई तब से मेरा फैट मतलब हाँ, वर्कआउट वो करती हूँ पोस्ट बट प्रेगनेंसी। उसका बहुत ज्यादा हो गया अब तो। हाँ, कोई बात नहीं, वो आप धीरे धीरे वर्कआउट करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे रेपिटेशंस को बढ़ाइए। चक्की संचालन जहां हम 20 बार करते हैं, वहां आपने 50 बार करना है, सिर्फ बेली पर फोकस करते हुए। रनिंग पे जाइए, जॉगिंग कीजिए अच्छे से। खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठिए, 5 से 10 मिनट अगर बैठ सकते हैं तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगी, बट रेगुलर बेसिस। बीच में 3-4 दिन का गैप आ जाएगा तो फिर कुछ मतलब नहीं है, रेगुलर करना है। ठीक है, ओके स्टार्ट थैंक कीजिए यू। आज से। थैंक यू। ओके ओके, यस मैम प्रतिभा जी। जी मैम नमस्कार। नमस्ते मैम नमस्ते मेरे प्रतिभा जी। को वो जो लोअर बैक पेन है ना बहुत ज्यादा है। जब से ये मैंने योगा भी 1 हफ्ता ही हुआ है, मैंने स्टार्ट करा आपकी क्लासेस लेना, आपके सेशन लेना। तो हाँ योगा तो कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़े आसन परफॉर्म कर रही हूँ, फॉरवर्ड बेंड मैं अवॉइड कर रही हूँ। और फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि वो स्ट्रेच हो रही है, लेग स्ट्रेच हो रही है, बैठ पा रही हूँ,
क्रॉस लेग में बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी, अब मैं 2 दिन से थोड़ा थोड़ा बैठ पा रही हूँ, जैसे सुखासन ट्राई कर रही हूँ, बट एकदम से वो मतलब वो नहीं कर रही हूँ, जो पास नहीं ला पा रही हूँ, अपनी जो हील होती है ना थाइस के पास नहीं ला पा रही हूँ। हाँ हाँ और उसके बाद मेरे को सर्वाइकल यहाँ बहुत पेन करता है, ये राइट शोल्डर, ऐसे मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जाता है सब है, लेकिन ये मेरा थोड़ा रिटर्न प्रॉब्लम है, बहुत प्रेशर दे के लिखती हूँ, उस वजह से भी ये ओके थोड़ा टाइट हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर। तो मैम जब भी मैं ये आसना करती हूँ तो उसके बाद मुझे बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद मैं मसाज करती हूँ ऑयल की, तो शाम तक वो थोड़ा ठीक हो जाता है अगर मैं रेस्ट लेती हूँ। अगर मैं काम करती रहती हूँ तो मतलब पेन कंटिन्यूअली मुझे होता रहता है। उसके लिए ये ठीक है। आसना करने के बाद धीरे धीरे ठीक होगा कि रेगुलर ऐसा चलेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रेगुलर ऐसा नहीं चलेगा। जैसा आपने बताया कि अभी आपको 1 डेढ़ हफ्ता ही हुआ है, तो 1 डेढ़ एक्सक्यूज मी हफ्ता मैम, बॉडी को 1 मिनट। मेरे को डिस्क इशू भी है, 2018 को मेरे को हुआ था, माइनर, बहुत ज्यादा नहीं था, बट बहुत प्रॉब्लम हुई थी, 6 मंथ रिकवर भी हो गया था, मैंने ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया था, उसके लिए मेडिसिन ली थी, और थोड़ी एक्सरसाइज मुझे रिकमेंड की थी, वो मैंने करी, उसके बाद मैंने ये ठीक सब है। छोड़ दिया, जब मैं पूरी तरह से मैं ये ठीक हो गई। डिस्क इश्यू कहाँ पे, कौन से रीजन में, अपर मिडल या लोअर? मैम बिल्कुल लोअर में, थोड़ा सा राइट साइड में, ऐसे ठीक जैसे है, एल और लंबर एल में है फाइव ना? कुछ ऐसे ही हाँ सजेस्ट हाँ किया था, हाँ, उसके बाद तो मैंने समझ चेक गई। भी नहीं कराया कभी। ठीक है, ओके। सो ये डिस्क इश्यू का जो इश्यू है, ये आपके ट्रेनर को पता है ये बात? अब मैंने किया उनके साथ भी डिस्कस ये, तो वो अगर कह रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, तो आप फॉरवर्ड बेंड अवॉइड कीजिए, आप कुछ ही स्पेसिफिक जो आसन है वही करिए जो आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। अभी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जैसे आप थोड़ा सा वो करते हो, बैंड होते हो या कुछ, तो थोड़ा एक्सेप्ट करने में भी उसको टाइम लग जाएगा, बहुत बॉडी मेरी वैसे भी बहुत स्टिफ है मैम, जैसे मैं यहाँ करती हूँ तो मैं इतना पेन हो जाता है मुझे, मतलब होल्ड नहीं कर पाती हूँ ज्यादा बिकॉज देर के लिए बिकॉज मुझे। ऑफ सर्वाइकल, वो नेचुरल है, वो कोई बात नहीं, वो सर्वाइकल की वजह से है कि आप अभी पूरा स्ट्रेच नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब क्योंकि 3 मिनट ही है, तो आई विल बी वेरी क्विक, मैं बोल देती हूँ अभी, ठीक है? कौन सी मैम? तो जो सर्वाइकल का इश्यू है, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे ज्यादा जब भी आपको टाइम मिलता है, आपने अपने हाथों को ऐसे पीछे बांधना है, चेस्ट बाहर रहेगा, नेक सामने की तरफ रहेगी, ओके? और इस पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा बैठने की और डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करनी है। दिन में 3 बार ये स्ट्रेच आपने करना है, फर्स्ट थिंग। मैम सेकंड थिंग, जो सर्वाइकल का इश्यू है, कोशिश करेंगे नेक को बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंड भी नहीं करेंगे, नेक को बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं लेके आएंगे। इन एवरी आसन नेक को न्यूट्रल रखेंगे, झटके से नेक इधर नहीं जाएगा, झटके से नेक इधर नहीं जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रल नेक का पोजीशन रहना चाहिए। थर्ड ओके। थिंग, स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स भी साइकोलॉजिकली सर्वाइकल पे बहुत काम करता है। स्ट्रेस जितना जी जी। बढ़ेगा, सर्वाइकल उतना एग्रीवेट होता जाएगा, ये साइकोलॉजिकल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? यस स्ट्रेस मैम। लेवल्स जितने कम रहेंगे, ये एरिया, ये पोर्शन आपका बिल्कुल लाइट रहेगा। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा, जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ये पूरा सोर हो जाएगा, ये और ज्यादा स्टिफ हो जाएगा, ठीक है? तो स्ट्रेस लेवल्स कम रखने। सेकेंड थिंग, आपने क्या करना है, दूसरा पर्वतासन, आपने पर्वतासन का प्रैक्टिस हर रोज करना है, जो सीटेड पर्वतासन होता है, बैठने वाला, ठीक है? हाथ नमस्कार मुद्रा में रहेंगे, प्रेशर क्रिएट करना है दोनों हाथों के बीच में। यहाँ से शुरू करेंगे पहले, फिर हम धीरे धीरे यहाँ लेकर जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कितनी देर होल्ड करते हैं, एल्बोज अच्छे से ब्रॉड रहेगी, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, चेस्ट आउट, एंड देन हम स्लोली स्लोली हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, जितना भी जाता है। अभी स्टार्टिंग है तो अभी कम जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 to 6 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक रुकेंगे, उसके बाद फिर से आएंगे, ठीक है? एंड इस पोजीशन में कोशिश करेंगे पर्वतासन को डे बाय डे इम्प्रूव करने की। पहले 5 सेकंड होल्ड किया, फिर 8 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर 10 सेकंड, और धीरे धीरे जब शरीर एक्सेप्ट करने लग जाएगा, सरेंडर करने लग जाएगा, बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती जाएगी, तो इस पोजीशन में आप 30 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये आपके पूरे सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेंथ दे देगा, स्ट्रेंथन कर देगा, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग आते ही सर्वाइकल बंद हो जाएगा, सर्वाइकल का जी मैम। इश्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? और रही बात लंबर के इश्यू की, तो आपने जी। लेग स्ट्रेचिंग अच्छे से करनी है। लेग स्ट्रेचिंग जो मैं अभी सबके साथ शेयर किया था, बेल्ट के साथ, लेग्स को ओके राइट साइड लेफ्ट साइड, वो लेग स्ट्रेचिंग आपने रखनी है अलग से। तो मैम, मैं जितना ऐसे लेग स्ट्रेचिंग करेंगे, बैठ नहीं पाती हूँ, मैं मोस्टली जैसे वज्रासन में बड़ा कंफर्टेबली बैठती हूँ, और इसी में मैं 30 to 40 मिनट्स बड़ा इजीली बैठ सकती हूँ, टीवी देख सकती हूँ। एक तो क्रॉस लेग्स ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे बैठ पाऊंगी,
वो भी कोई 5 मिनट्स, 5 इससे ज्यादा नहीं अभी बैठ वो बिकॉज क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लंबर स्टिफ है, ठीक है, वो लंबर में अभी स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम नहीं बैठ पा रहे हैं। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, एक कुशन लेना है हिप्स के नीचे, ठीक जी है, मैम। एक कुशन लेना है हिप्स के नीचे और 2 कुशन लगाने साइड, ओके। बस। एक कुशन हिप्स के नीचे, 2 कुशन हमारे नीज के साइड में, और फिर देखें आपको ऑटोमेटिकली आराम मिलेगा, क्योंकि मसल स्ट्रेच नहीं होंगे, लंबर एकदम रिलैक्स हो जाएगा। जब भी हम ब्लॉक, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, ब्लॉक ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, जो ब्लॉक आते हैं ना, योगा जी ब्लॉक, मैम। हम्म। वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, सिर्फ एक ब्लॉक। तो उस ब्लॉक को आप जब भी सुखासन में बैठते हैं, आपने उस ब्लॉक को अपने बटक्स के नीचे लगा के बैठना है। वो ब्लॉक जब आप लगाएंगे तो आपका जो लंबर कंप्रेस हुआ पड़ा है ना, वो रिलैक्स रहेगा, और जब वो रिलैक्स रहेगा तो फिर आप बैठ पाएंगे ऐसे। और अभी के लिए कुशंस और 2 कुशंस हमारे नीज के साइड में, ठीक है, तो वो लंबर पे प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, सपोर्ट मिल गया हमें, और सपोर्ट मिलते ही लंबर रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। ये करके देखेंगे थैंक और यू। फिर मुझे नेक्स्ट संडे बताएंगे। ओके श्योर मैम, श्योर। Okay, थैंक यू। Pratibha. Okay. I'll take a leave, everyone. Take care. Good day.